السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں جرائم اور اس کی اسلامی سزائیں۔ اس سیریز کے ماتحتی میں اور جو عنوان ہے آج ہمارا وہ یہ کہ مختلف طریقے سے جب کسی کے جسم کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اسلام نے ایسی صورت میں اس کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے۔ اسلام نے ہر ایک کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اگر کوئی آدمی اس چیز میں فیل ہو جائے گا، یعنی اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں رہ رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لوگوں کو زخم دے رہا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ زخم دیتے دیتے کسی کو مار ڈال رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اسلام کا نظام بہت ہی اس معاملے میں سخت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر قتل غارت گری، لوگوں کو نقصان پہنچانا، کسی کو مار دینا، تکلیف دینا، یہاں تک کہ ہڈی گڈی توڑ دینا، یہ سب بہت عام بات ہے، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو بہت ہی جو ہے سیریس لیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے جی میں جو آئے وہ کر دے، کیونکہ ہر انسان کا احترام ہے، ہر نفس کا احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا اپنا ایک مقام رکھا ہے، ہر انسان کی اپنی ایک ویلو ہے۔ یہ تھوڑی نہیں ہے کہ جنگل راج ہے، جس کے جو جی میں آئے وہ کرے، کسی کو مار دے، کسی کو اس دنیا سے رخصت کر دے، یا کسی کا مار کر کے ہاتھ پیر توڑ دے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے اسلام نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا، کرائم اور کرائم پر کیا سزا حقیقت میں ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا۔ وہ چیز نہیں بیان کیا کہ بھائی تم اپنی مرضی سے کچھ بھی سزا رکھ لو، اس سے کچھ فائدہ ہو چاہے نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں مکمل طور پر رہنمائی کی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور انسان اگر غلط راستے پر جا رہے ہیں تو کیسے ان کو صحیح کیا جائے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا قتل کی سزا، اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا سزا ملے گی، کل میں نے یہ آپ کو بتایا تھا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر چاہے تو گھر والے، یعنی جس کا قتل ہوا ہے، مقتول، اس کے گھر والے اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور چاہے تو مکمل معاف کر دیں، چاہے جرمانہ لے لیں، جسے دیت کہتے ہیں، عربی میں دیت کہتے ہیں۔ تو دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے بہت ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آئیے اسی کو ہم آگے جو ہے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا یہ مسئلے مسائل کا علم ہے، لہذا بہت ہی غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو قتل تو نہیں کرتا، لیکن ایسے ہی اس کو جو ہے مارا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی انگلی توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کی آنکھ توڑ دی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ساری چیزوں کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ توڑ دیتا ہے تو کیا ہونا چاہیے، کسی کا دانت کوئی توڑ دیتا ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اعضاء وغیرہ میں بھی قصاص لاگو ہوگا۔ اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، ناک، منہ، انگلی، پیٹ، دماغ میں اگر مارتا ہے، سر پہ مارتا ہے، اس کا اثر دماغ تک جا رہا ہے، تو ان سب میں قصاص لاگو ہوگا۔ کیونکہ موت کی جو سزا ہے، یعنی قصاص، موت کے بدلے موت، وہ تو تبھی ہوگا جبکہ کوئی آدمی کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے، تبھی یہ مطالبہ ہو سکتا ہے۔ مقتول کے گھر والے کہیں گے کہ بھائی ہمیں جو ہے اس کے بدلے میں اس آدمی کو قتل کرنا ہے اور حکومت اس کو سزائے موت دے۔ یہ تو کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جبکہ وہ ایک آدمی موت کے گھاٹ اتر گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کو ذرا سا آپ دیکھیے۔ تو کہا اعضاء وغیرہ میں بھی قصاص لاگو ہوگا، اور اسی طرح زخموں میں بھی اگر ممکن ہے تو قصاص لاگو۔ زخم اگر ہو گیا تو اس کا بھی ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا، اگر اس کا جو ہے ہم لیکھا جوکھا بنا سکتے ہیں، اس کا حساب کتاب کر سکتے ہیں، یعنی حاکم وقت حساب کتاب لگا سکتا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب لگائے گا۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں جو ہے ایک حدیث آپ کے سامنے ہم سناتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ
ایک عورت تھی, اس عورت کے یہاں جو ہے کسی کا دانت توڑ دیا گیا تھا. تو جب دانت توڑا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے معاملہ آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دانت توڑنے کا حکم دیا. گھر والے معاف نہیں کر رہے تھے, معاف کرنے کے لیے بھی کہا, لیکن گھر والے معاف نہیں کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ ٹھیک ہے بھائی, اس پر قصاص لیا جائے گا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانت توڑا جائے گا, دانت توڑا جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے کہ دانت توڑا جائے گا؟ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. بہت سختی میں یہ بات کہی, اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس, کتاب اللہ القصاص, قصاص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. یہ سب کے بدلے میں سب بدلہ لیا جائے گا. کوئی آنکھ پھوڑے گا, اس کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, ناک کے بدلے میں ناک, دانت کے بدلے میں دانت, اور زخم دے رہا ہے تو زخم کے بدلے میں زخم. یہ قصاص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ یہ لوگ جو مان نہیں رہے تھے تو وہ لوگ مان گئے, کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے معاف کرتے ہیں, اس میں ہم دیت لے لیں گے, جو اس کا جرمانہ ہے, ہرجانہ ہے, وہ ہم لے لیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. حالانکہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا, ایک جذبے میں آ کر کے یہ بات بولی, دانت توڑا جائے گا, نہیں نہیں دانت نہیں توڑا جائے گا. تب تک وہ لوگ مان گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا کہ ان من عباد اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ, کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مانگ پوری کر دیتا ہے, ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے. انس جو ہے اتنے شدت کے ساتھ بولے نہیں نہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اللہ رب العالمین چاہیے اتنے مقبول ہیں, اتنی زیادہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کے گھر والوں کو راضی کر دیا دل و دل میں. تو یہ جو ہے دو چیزیں یہاں پر پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چلی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں حقیقت میں جب وہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. اور دوسری چیز جو یہاں پتہ چلی وہ یہ کہ دیت ہوگی اور قصاص ہوگا. قصاص اگر چاہتے ہیں مقتول کے گھر والے تو قصاص ہی ہوگا, جرمانہ وغیرہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک چیز اور بتا دیں آپ کو, قصاص سے معافی اچھی ہے. اگر آدمی معاف کر دے, دیت پہ راضی ہو جائے, یعنی ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے اگر معاف کر دے, کہتے نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم تم کو معاف کرتے, تم ہمیں دیت دے دو, یہ بہت اچھی بات ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آدمی اس طرح کا کیس لے کر کے آتا تھا, قصاص کا معاملہ ہوتا تھا, الا امر فیہ بالعفو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں معاف کرنے کا حکم دیتے تھے. کہتے تھے کہ معاف کر دو, معاف کر دو, اچھا ہے دیت لے لو. لیکن اگر گھر والے کہتے نہیں ہم معاف نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں قصاص ہی لازم تھا. اسی لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس مسئلے میں حکومت کی نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے, یہ کر لو, چاہے یہ کر لو, چاہے یہ کر لو. جس آدمی کے گھر کا آدمی مرا ہے تو اس کے گھر والے جو ہے تو جو بہتر فیصلہ کرنا چاہیں گے کریں گے. ہاں, گھر کا اگر کوئی ایک آدمی دیت لینے پر راضی ہو جا رہا ہے تو سب کو راضی ہو جانا چاہیے. یہ بھی ایک حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے تو ایک آدمی راضی ہے تو ایک آدمی نہیں 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 تم کیسے ہو, تم کیسے جو ہے ایسی بات کہہ رہے ہو. تو گھر کا اگر کوئی بڑا ہے یا گھر کا کوئی ممبر ہے, اگر وہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی دیت لے لیا جاتا ہے, تو ایسی حالت میں دیت لے لینا چاہیے. قصاص پر ضد نہیں کرنا چاہیے, بضد نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں قصاص ہی کروں گا. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. اب ہم آتے ہیں اصل جرمانے کے مسائل پر آتے ہیں کہ جرمانہ کیا ہے, دیت کیا ہوتی ہے. ساری کی ساری چیزوں کا ہم آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے کیا بتایا تھا, اگر قتل کوئی کرتا ہے, قصاص نہیں لیتا ہے, دیت لینے پر راضی ہے, تو کتنا اونٹ لینا پڑے گا, یعنی کتنا اونٹ جو ہے قاتل اور قاتل کے گھر والے دیں گے, 100 اونٹ. 100 اونٹ جو ہے دینا پڑے گا. اور اس میں بھی اونٹ میں قید ہے, قتل عمد اور قتل شبہ عمد, اس میں جو ہے تو قید ہے. وہ قید کیا ہے کہ 40 اونٹ حاملہ ہونے چاہیے. 40 اونٹ حاملہ ہونے چاہیے, یعنی 40 اونٹ کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہونا چاہیے. اب سوچیے وہ کتنا مہنگا ہوگا. 100 اونٹ جوڑ لو کتنا روپے کا پہنچ جائے گا. یہاں پر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 800 دینار اور 1000 دینار کا رواج رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 800 دینار تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اونٹ کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے, 800 دینار اب نہیں رہ پائے گا,
बल्कि 1000 दीनार आएगा। तो नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग सोने वाले हैं यानी दीनार रखे हुए हैं वो समझ लें कि अब जो है 1000 दीनार चलेगा। और इसी तरीके से जो है चांदी का मामला था, तो चांदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 8000 दिरहम थी। चांदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 8000 दिरहम थी, लेकिन जो है तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 1000 जो है दीनार और चांदी 12,000 चांदी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में तय हुई। और पहले क्या था, 8000 दिरहम और 800 दीनार, दीनार यानी सोना, दिरहम यानी चांदी, 800 दीनार और 8000 दिरहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या फरमाया कि 1000 दीनार और 12,000 दिरहम यानी चांदी, इस तरीके से अब दियत ली जाएगी। इसी तरीके से दियत जो होती है वो अगर जिम्मी की तरफ से आ रही है, यानी अगर जिम्मी है तो उसकी दियत जो है मुसलमानों का आधा होती है, यानी मुसलमान अगर है तो उसको मुकम्मल जो है तो दियत देना पड़ेगा। लेकिन अगर जिम्मी है यानी किसी मुसलमान ने जिम्मी को कत्ल कर दिया, किसी मुसलमान ने जिम्मी को कत्ल कर दिया, तो ऐसी सूरत में इसका आधा ही जुर्माना दिया जाएगा। अम्र बिन शुआइब अन अबीही अन जद्दीही रवायत करते हैं कि काफिर की दियत मुसलमानों की दियत का निस्फ है। काफिर को जो दियत दी जाएगी, यानी काफिर को अगर कोई कत्ल कर देगा तो ऐसी सूरत में मुसलमानों का आधा उन्हें जो है दिया जाएगा। ये इस्लाम का कानून है, फर्क करने के लिए दोनों के दरमियान। अब इसके बाद जो है हम आते हैं एक एक चीजों के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताया था कि 100 ऊंट में 40 ऊंट हामला होने चाहिए, किस चीज में होने चाहिए, ये जो है दियत शिबह अमद, ये जो है कत्ले अमद और कत्ले शिबह अमद, ये दो चीज मैंने आपको कल बताई थी, उसमें ये चीजें आएंगी। और कत्ले खता में जो है वो लाजिम नहीं है कि 40 ऊंट जो है हामला हो, वो लाजिम नहीं है। अब इसके बाद जो है आइए एक एक चीज का जिक्र करते हैं। यहाँ पर अहादीस बहुत सारी है, उसमें आप जब देखेंगे किताबुद्दियात, ये जो है बुखारी में भी है, अबू दाऊद में भी है, मुस्लिम में भी मिलेगी, इब्न माजा, सब जगह ही मिलेगी। तो उसमें ये सारे मसाइल लिखे हुए हैं, यानी दियत यानी कत्ल या जख्म करने पर जो जुर्माना तय होता है उसका जो बयान होता है उसे किताबुद्दियात कहते हैं, यानी किताबुद्दियात में वो जिक्र होता है। तो अब यहाँ पर देखिए सारी चीजों को हदीस से निकाल करके एक यहाँ सेंटेंस, एक जो है पैराग्राफ बना दिया गया है। हम आपके सामने उर्दू में पढ़ करके सुना देते हैं कि दोनों आंखों, दोनों होठों, इसी तरीके से हाथों, दोनों हाथ, पांव यानी दोनों पांव, और खुशियों यानी कि हाइड्रोसिल में पूरी दियत है। इसमें पूरी दियत यानी जिस तरीके से कत्ल वाली जो दियत होती है सेम वैसे ही दियत इसमें भी देना पड़ेगा। और इनमें से अगर कोई एक चीज को नुकसान पहुंचा, नहीं 2 होठ नहीं बल्कि 1 होठ को नुकसान पहुंचाता है, 2 हाथ नहीं बल्कि 1 हाथ को तोड़ देता है, नुकसान पहुंचाता है, 2 पैर नहीं बल्कि 1 पैर को तोड़ देता है, तो ऐसी सूरत में निस्फ, आधी दियत हो जाएगी। बात समझ में आई, यानी कि 50 ऊंट। अब इसके बाद फरमाते हैं कि इसी तरह नाक, जुबान, चूंकि नाक तो एक होती है, जुबान भी एक होती है, और जकर यानी आले तनासुल, यानी शर्मगाह, जिससे जो है पेशाब की, देखिए शर्मगाह के 2 हिस्से हैं, एक हाइड्रोसिल और एक जो है जिससे पेशाब निकलता है, दोनों का अलग अलग हुक्म है। खुशिया जो है वो अलग चीज है और जो है आले तनासुल वो अलग चीज है। इसी तरीके से जो है पुश्त यानी पीठ और दिमाग तक पहुंचने वाले जख्म, यानी ऐसा मारा कि दिमाग पर असर आ गया, या इसी तरीके से पेट तक पहुंचने वाले, ऐसा मारा कि पेट के अंदर जो है तकलीफ आ गई, अंदरूनी दिक्कत भी आ गई। इस तरह के अगर जख्म है तो इसमें जो है 1 सुलुस होगा, यानी 1/3 जो है दियत, यानी 100 का 1/3 दियत दी जाएगी। और हड्डी को अपनी जगह से हिला देने वाला जो जख्म होगा, हड्डी को अपनी जगह से हिला देने वाला, यानी हड्डी टूटी तो लेकिन हिल गई है, खसक गई है, इतना मारा है कि खसक गई है, तो ऐसी सूरत में जो है 10वां दियत का कितना देंगे, 10वां और 10वें का निस्फ यानी 15 ऊंट, यानी 10वां और 10वें का 5वां हिस्सा, यानी कि जो है तो टोटल मिलाकर के 15 ऊंट। और हड्डी को तोड़ देने वाले जख्म में दियत का 10वां हिस्सा, यानी हड्डी को तोड़ देने वाले मामले में दियत का जो है 10वां हिस्सा है। और हड्डी को वाज़ेह
करने वाले जख्म में भी इसी तरह दियत होगी। हड्डी को वाज़ेह करने का मतलब ये है कि बिल्कुल हड्डी दिखने लगी, इस तरह की चीज। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई, किताबुल दियात में जब आप जाएंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। एक रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथों और पांवों की दियत बराबर है, यानी जैसी हाथ की दियत है वैसे ही पैर की दियत है। इसीलिए ऊपर यह जिक्र किया गया कि हाथों पांव या एक हाथ एक पैर सबका एक हुक्म है। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल असाबिअ सवा वल अस्नान सवा असनिया वदर सवा, यानी तमाम उंगलियां बराबर हैं, तमाम दांत बराबर हैं। सनिया यानी दांत के जो आगे का ये हिस्सा होता है वो सब, ऊपर और नीचे के दरमियानी दो दांत जो होते हैं, और दाढ़, ये सब बराबर है, ये सब चीजें बराबर, यानी इन सब चीजों का एक हुक्म है। यानी जो हुक्म एक उंगली का है वही सारी उंगली का है। हाँ, अंगूठे का हुक्म दूसरा है, और इसी तरीके से दांतों का हुक्म एक जैसा है। इसी तरीके से एक हदीस और है, इसमें जिन जख्मों से हड्डी जाहिर हो जाए उनमें 5 ऊंट है। जिन जख्मों से हड्डी जाहिर हो जाए उनमें 5 ऊंट है, ये हमने आपको बता दिया है, ये हदीस अब आ रही है। तो किताबुल दियात में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो इन मज़कूरा जख्मों के अलावा जख्म है, यानी किसी चीज को मारा, इनमें से नहीं है, इनमें से कुछ नहीं हुआ बल्कि कहीं और लग गई, जैसे मान लीजिए जो है मोढ़े पर लग गई या कहीं, जिसका जिक्र हदीस के अंदर नहीं आया है, तो उनकी दियत उनमें से किसी की तरफ अकरब निस्बत के लिहाज से होगी। तो कयास किया जाएगा। अब जैसे किसी को मोढ़े पर लगा तो अब कयास किया जाएगा कि ये किसके करीब हो रहा है। जो हदीस में बयान किया गया है जुर्माना, जिन जिन जख्मों पर जुर्माना बयान किया है उसमें ये किसके करीब हो रहा है, तो उसी की दियत जो है ली जाएगी, वैसे ही जुर्माना जो है भरना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी औरत के पेट में बच्चा है, किसी औरत के पेट में बच्चा है, तो अब मारा, अब बच्चे को नुकसान पहुंच गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में बयान करते हैं अगर पेट में से बच्चा मुर्दा निकले तो एक गुलाम दियत है, यानी एक गुलाम जो है उसके बदले में देना पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से माँ का भी इंतकाल हो जाता है, यानी मारा, बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई, तो ऐसी सूरत में जो है माँ का किसास, या तो किसास होगा या जो है दियत देनी पड़ेगी, यानी 100 ऊंट माँ के नाम, और इसी तरीके से बच्चा जो है जो हलाक हुआ है उस पर एक गुलाम जो है देना पड़ेगा। आजाद नहीं बल्कि उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये कफारा नहीं है बल्कि ये जुर्माना है, ये जुर्माना उसको देना पड़ेगा जिसको नुकसान हुआ है। तो ये चीजें हैं। कहते हैं अगर माँ भी मर जाए, मैंने बताया तो इस सिलसिले में इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का जो मसलक है वो ये कि मारने वाले पर माँ की दियत और जनीन का गुलाम अदा करना वाजिब है। इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो माँ की मौत के बाद मुर्दा निकले या उसकी जिंदगी में मुर्दा निकले। यानी माँ को मारा, अब बच्चे को नुकसान हुआ, हो सकता है कि माँ मर जाए फिर बच्चा भी बाहर निकल आया उसी हालत में, या ये हो सकता है कि बच्चा पहले मर गया फिर वो निकला फिर बाद में माँ मरी। कैसे भी सूरत में दोनों पर जुर्माना दिया जाएगा, जो दोनों का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई जानवर कत्ल हो जाए, यानी कोई आदमी उसने किसी का जानवर कत्ल कर दिया, मार दिया, या इतना मारा कि वो मर गया, या मरा नहीं जख्मी हो गया, तो उस पर भी दियत है इस्लाम के अंदर। इस देखो कानून है, इस पर आप अमल कीजिए। 2-4 लोग के साथ ऐसा अमल कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला जो है सबको सबकी औकात दिखा देगा। सब लाइन पर ना आ गए तो क्या, लेकिन सबको पसंद है, सबको जुर्म पसंद है, सबको जो है ये माहौल पसंद है। क्यों लोग इस्लाम को पसंद नहीं करते? क्यों ये सब चीजों को पसंद नहीं करते? क्यों इसके खिलाफ है? आपको मालूम है? क्योंकि 90% लोग शराब पीते हैं। इस्लाम कहता है शराब मत पियो। अभी देखो शराब की दुकान खुली है, आज लॉकडाउन थोड़ा खुला है, देख रहा हूं मैं भी, तो अब देखिए कितनी खबरें आ रही हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ जो है शराब की दुकान पर है। इतनी दूर दूर तक भीड़ लगी हुई है कि पुलिस वालों को जो है दुकान बंद करवाना पड़ गया। तो ये हाल है। अब आप कहेंगे शराब मत पियो, तो कौन आपकी बात माने? इस्लाम ठीक नहीं, इस्लाम मजहब ठीक नहीं है, सब शराबी है। इल्ला माशाअल्लाह जो जिनको अल्लाह ने बचा लिया बस मुसलमान, और मुसलमान में भी जिनको अल्लाह ने बचाया, वरना मुसलमान कम शराबी है। कौन पसंद करेगा इस दिन को? वही पसंद करेगा जिसके अंदर इंसाफ होगा, जो अल्लाह से डरता है, जो मरने के बाद की जिंदगी से डरता है। इस्लाम में जिना हराम है, 80% लोग जिना करते हैं। कोई जिना बिल जबर करता है और कोई छुप छुपा करके आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जिना करते हैं। मर्द औरत एक दूसरे के साथ जो है इश्कबाजी के साथ जिना करते हैं। आप जाइए बोलिए जिना इस्लाम में ये सजाएं आप बता दीजिए,
कौन मानेगा इस्लाम? माहौल अंधेर नगरी चौपट राजा, सब मुजरिम हैं, सब कातिल हैं, चाहे वो अदालत में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, चाहे अवाम हो, इल्ला माशाअल्लाह, बस जिसको अल्लाह ने बचा लिया। अदालत में भी अच्छे लोग हैं, हुकूमत में भी अच्छे लोग हैं, अवाम में भी अच्छे लोग, जिनको अल्लाह ने बचा लिया। कौन इस्लाम को पसंद करेगा भाई? ये सब चीजें हैं, अभी लगा दो। लोग खाली मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने माशरे को पाक साफ करना है, यहां से जिना खत्म करना है, यहां से चोरी खत्म करना है, यहां से डकैती छिनैती खत्म करना है, यहां पर मर्डर नहीं करना है। लोग कहते हैं ना कि गुंडे लोगों, अगर चैन से रहना चाहते हो तो गुंडैती मत करो। ये कौन कहता है? कौन बोल रहा है? कौन सी हुकूमत बोल रही है? वही जिसके अंदर एक से एक गुंडे पड़े हुए हैं। अभी उसका कोई आदमी जो है गुंडैती करे, किसी को कत्ल करे, तो देखिए कैसा हुकूमत बचाती है उसे। अगर हुकूमत के ऊपर कभी अदालत ना हो ना, तो पता नहीं क्या हो जाए इस मुल्क के अंदर। ये तो अदालत है, कभी कभी जो है यहाँ के कवानीन को बचा ले जाती है, कभी कभी इंसाफ जो मिल जाता है ये अदालत की देन है। वरना यहाँ पर हुकूमत के आदमी भरोसे रहे ना, तो पता नहीं क्या हाल हो, क्या हशर हो यहाँ की आवाम का। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर अदालत का कुछ खेल चल जाता है, और अदालत जो है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो फैसला जब करते हैं कभी कभी हुकूमत से भी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। ये सब चीजें हैं। यहाँ जानवर को देखिए कत्ल करने पर ये है, यहाँ तो कोई किसी को भी कत्ल कर दे, मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं हम गाय की हिफाजत करते हैं, करिए हिफाजत। देखिए इस्लाम तो खुद बता रहा है, गाय नहीं सारे जानवरों की हिफाजत करो, नाजायज तरीके से उसको मत मारो, गलत तरीके से उसको मत मारो। हाँ, खाने के लिए उसको हलाल किया गया है, ये आपकी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है। महाभारत में भी ये कई जगह पर लिखा हुआ है कि जानवर जो खाने के लिए बनाए गए हैं, उतारे गए हैं खाने के लिए, उसको आप खा सकते हैं। ये तो जबरदस्ती की लड़ाई है, लोग गाय और बैल के नाम पे लड़ाई करते हैं, उसको भगवान मानते हैं और जो भी मानते हैं। वरना हकीकत तो ये है कि ये बास जानवर जो है खाने के लिए है, खुद उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो जबरदस्ती का झगड़ा है, खाली मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए। तो क्या है कि इसे उसकी कीमत देनी पड़ेगी। जानवर को हलाक कर दिया, जो जानवर हलाक किया है उसकी कीमत देनी पड़ेगी, जो उसका रेट होगा मार्केट में वो रेट देना पड़ेगा। या जानवर अगर है उसका रेट एक तखमीना लगाया जाए। कभी कभी जानवर कमजोर भी होता है, कोई जानवर मजबूत होता है, तो जैसा था उस हिसाब का तखमीना अंदाजा लगा करके रेट लगाया जाएगा। और इसे जख्म पहुंचाने की सूरत में भी इसकी कीमत के हिसाब से अदायगी की जाएगी। जख्म लगाया है तो उसका तखमीना अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ, उसी हिसाब से उसको हर्जाना दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए गुलाम और जानवर वगैरह ऐसी अशिया है कि इंसान जिनका मालिक बन सकता है, तो जो इन्हें हलाक करेगा उस पर उनकी कीमत या जख्मों का जो है हर्जाना अदा करना लाजिम होगा। इमारत गिर जाए, इमारत गिर जाए तो ऐसी सूरत में क्या है, यानी हम सबब बन गए, एक दीवार है या घर है हमारी वजह से गिर गया, हमारी लापरवाही की वजह से गिर गया। हमने लापरवाही नहीं की है तो बात अलग है, लेकिन हमारी लापरवाही से, हमारे करने की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, तो ऐसी इमारत गिरने की सूरत में अगर कोई हलाक हो जाए तो उसका सबब बनने वाले पर जमानत देना वाजिब है। आपस में इत्तेफाक किया जाएगा, ज्यादा जुल्म नहीं कर सकते, जो वाजिब है, जो सही है, वही जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक मसला और सुन लीजिए इस मामले में कि अगर मोमिन मकतूल दुश्मन के इलाके में रिहाइश पजीर हो, यानी जिसको कत्ल किया गया है वो जो है दुश्मन के इलाके में रिहाइश पजीर हो, तो फरमाते हैं इसमें कोई दियत नहीं है। अगर मोमिन मकतूल यानी जिसको कत्ल किया वो मुसलमान ही था और वो कहाँ रहता है, दुश्मन के इलाके में रहता है, यानी मुसलमान में कभी कभी दुश्मनी होती है ना, दो गुट होते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर है तो इसमें कोई दियत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मोमिन गुलाम आजाद करने का ही कफारा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो, अगर मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया है वो तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और हो वो मुसलमान, है दुश्मन कौम का लेकिन है वो मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करना लाजिम हो जाएगा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 92 है, 92, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई आदमी अगर अपने दिफा में किसी को मार दे, यानी कोई आदमी मारने के लिए आया, जैसे मॉब लिंचिंग होती है, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि जो मारने आया वही मार खा गया,
जब मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा होने लगी ना तो लोग थोड़ा सा मुस्तैद होने लगे कि हमें अगर कोई मारेगा तो फिर हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि हमें अपनी जान बचाना है। तो वही है, इस ऐसी सूरत में ना कफारा है, ना दियत है, ना कुछ है, ना किसास है, कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो मारने अपनी जान की हिफाजत के लिए अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसमें कोई नहीं, आपकी जान ज्यादा अहम है, अपनी जान की हिफाजत करना हमारे ऊपर फर्ज है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर दरियाफ्त किया कि अगर कोई मेरा माल छीनना चाहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसे ना दो। फिर उसने पूछा अगर वो मुझसे लड़ाई करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम भी उसके साथ लड़ाई करो। फिर उसने पूछा अगर वो मुझे कत्ल कर दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम शहीद हो। फिर उसने पूछा अगर मैं उसे कत्ल कर दूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फहुवा फिन्नार, तो वो जहन्नम में जाएगा। तुम शहीद हो, वो जहन्नम में जाएगा। क्यों तुम शहीद हो? तुम इसलिए शहीद हो क्योंकि तुमने अपने दिफा में, अपनी हिफाजत में कदम उठाया, लेकिन वो तुम्हें मारने के लिए आया था जबरदस्ती, इसलिए जो है वो आग में जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि इस सूरत में जो है कोई दियत नहीं है, कोई किसास नहीं। अगर कोई इस दिफाई कत्ल का दावा करे और इस पर दलील शवाहिद कायम कर दे तो उससे किसास दियत साकित हो जाएगी। इस तरह का केस अगर आता है, अपनी दलील दे, उससे साबित करे, तो ऐसे हालत में किसास और दियत जो है साकित हो जाएगी, वरना उसे मकतूल के औलिया के हवाले कर दिया जाएगा, मकतूल के औलिया के हवाले कर दिया जाएगा। ये सैयद साबिक रहिमहुल्लाह जो है बयान करते हैं। तो ये चीजें थी, हमने आपको दियत के ताल्लुक से बयान किया, जुर्माना और हर्जाने के ताल्लुक से बयान किया। ये हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कत्ल, गारतगरी, तकलीफ पहुंचाना, इस सिलसिले में हमने सारी बातें मुकम्मल कर दी। अब इंशाअल्लाह अजीज कल फिर कोई नई चीज लेकर के आपके सामने आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान और अहादीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जुर्म से बचाएं, हर किस्म के जुर्म से बचाएं, अमन अमान से रहने की तौफीक अता फरमाए हम लोगों को। और इसी तरीके से सारे हुक्मरानों को तौफीक दे अल्लाह ताला कि वो लोग जो है इस्लामी जो कवानीन है उस पर अमल करें, ताकि अपने माशरे को हर किस्म के शर से महफूज कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।